Going to discuss about mainly carboxylic acids. What is meant by carboxylic acid and how these are classified? What are the methods of preparation and the question based on each type? Correct. So first, I'm going to start with the carboxylic acid introduction part. As you know here, carboxylic acids are the compounds in which carboxylic group is present. Which group? Carboxylic group. As you know the formula here, no need to explain much more about that. C double bond O, then O and H. This is the structure of carboxylic acids. Carboxylic acid, where two lone pair of electrons are present around this carbon. Similarly, lone pair of electrons are present around this carbon. Sometimes the question can be framed as carboxylic group is the combination of how many groups are there? Anyone of you, please respond. Yes, students. Carboxylic group, two groups are there. Which are these? Which groups are these? Ketone and aldehyde? नहीं. Ketone and aldehyde नहीं होता है बेटा. Ketone and alcohol. You can't say ketone because ketone में क्या रहेगा? Yes, carbonyl and alcohol is the correct answer. Sai Ram Venkatesh. Very good. If you are going to write here ketone, it means this should be like this. Or sometimes you have to mention like this only, C double bond O. This is ketone. But here one side is also occupied by this one, OH group. That's why you can't say exactly this is ketone. So remember here, how many lone pair of electrons? Lone pairs कितने होते हैं carboxylic group के अंदर? Total lone pairs. If they are asking about the total number of lone pairs कितने? Carboxylic group, not only in carbonyl. So 4 lone pairs are there. Correct. What are the groups? First group is carbonyl group, and second one is not alcohol. You have to say just hydroxyl group. Clear? अल्कोहल नहीं बोलेंगे आप, केवल हाइड्रोक्सी बोलेंगे या फिर जस्ट OH फॉर्मूला रहेगा तो OH इंडिकेट करोगे. ठीक है बेटा? So please remember this thing. Now next one is organic compounds containing carboxylic group known as carboxylic acids. We know that these may be considered as aliphatic as well as aromatic. So classification is based. First classification I have written here, based on nature of the hydrocarbon chain. On the basis of hydrocarbon chain, you can say aliphatic and aromatic hydrocarbons chain are present. In aliphatic, I have already taken an example of alicyclic compound, which is cyclic but aliphatic in nature. That's why. So aliphatic carboxylic groups are those in which the carboxylic group is directly attached to the aliphatic hydrocarbon chain. किसके साथ अटैच रहेगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर अटैच है तो क्या बोलेंगे उसको हम? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है COH ग्रुप का, दैट विल बी नेम्ड एज एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने लिखे यहाँ पे. CH3COH, as you know here, this is acetic acid. Cyclopropane carboxylic acid. Here, this is formic acid, which is basically used in its diluted form to preserve the biological specimens or anatomical species. You can say here carboxylic acid, oxalic acid I have written, but this carboxylic acid which is given here, that is anhydrous. It means carboxylic acid has two different formulas. You know well. What are these? One is the hydrated form of carboxylic acid.
ऑक्सैलिक एसिड हियर, that is COOH and here COOH dot 2H2O. This is called as hydrated. This is called as hydrated oxalic acid. And if you are not writing this one, you are just going to write here COOH and here COOH. This will be anhydrous. ब्लर है, मे बी ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशंस, थोड़ा इंटरनेट का हो सकता है इशू होगा. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ आना चाहिए. ब्लर इन द सेंस यू आर आस्किंग एट द बोर्ड, करेक्ट. थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है. चलो ठीक है. नाउ सॉरी, ब्लर आ रहा है तो इसका एक ही है. 1 मिनट. आई थिंक नाउ इट इज करेक्ट. दिख रहा है अभी बराबर ये? Yes, sir. Okay. Yes, sir. In case of aliphatic, the carboxylic group is directly attached to the aliphatic hydrocarbon chain or alicyclic ring. And in case of aromatic carboxylic acids, the carboxylic group is attached to the benzene ring basically, which is given in your syllabus. बाकी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि ये एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछे गए हैं. बेंजोइक एसिड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एरोमेटिक सीरीज. Phthalate acid, it is given in your textbook, but it is given in amines. Preparation of amines में phthalic anhydride से starting है. Preparation of amines का वहां पे given है first step. Next is teripathalic acid. Teripathalic acid just para position पे attach है. Phthalic में ortho position attach है, 1-2 position. They can directly ask about the position of carboxylic groups attached to the एरोमेटिक रिंग. कहां पे अटैच है एग्जैक्टली, वो पोजीशंस के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे. क्लियर. नेक्स्ट इज टोलोइक एसिड. बुक में आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, वो टेबल में एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज एस्पिरिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्पिरिन का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इसमें पोजीशंस जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का विथ रेस्पेक्ट टू दिस एस्टर कैसा है, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच है, ठीक है. इसमें आपके पास क्वेश्चन भी आगे आएगा, एक दिखाऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद. चलो फर्स्ट हो गया ये. नेक्स्ट आते हैं. बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स. कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के नंबर के बेसिस पे कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है, COH ग्रुप, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में. क्या क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक. देयर आर 3 मेजर पार्ट्स, मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके. मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक में बेसिकली एग्जांपल्स क्या हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए, फर्स्ट इज acrylic acid. They can directly ask the formula. The correct formula for acrylic acid is क्या है आपके पास? आपको सिखाया था हमने अक्राइलोनाइट्राइल. अक्राइलोनाइट्राइल अगर याद है तो acrylic acid डेफिनेटली आपको याद रहेगा. अक्राइलोनाइट्राइल क्या है? Preparation. In case of polymers, you have seen this formula, that is CH2 double bond CH single bond CN. So acrylonitrile था. यहाँ पे क्या है आपके पास? acrylic acid, CH2 double bond CH COOH. acrylic acid हो गया. Isobutyric acid, they can ask like this alpha methyl, because जब nomenclature आप सीखते हैं तो उस केस में इसको हम स्प्लिट कर देते हैं. सपोज क्या हो जाएगा आपके पास फॉर्मूले में? CH, यहाँ पे आपके पास CH3, here CH3, now COOH. अल्फा पोजीशन कौन सा है? The carbon atom which is directly attached to the carboxylic group is alpha carbon. It means this carbon atom is alpha. एक तो आपके पास parent chain में कंसीडर हो गया,
और सेकंड क्या है आपके पास, मिथाइल एस ब्रांच है, तो क्या नेम हो गया इसका, अल्फा मिथाइल, देन ओवरऑल बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ डेरिवेशन दैट इज प्रोपियोनिक एसिड, करेक्ट. सो दिस इज अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड. सेकंड वन इज क्रोटोनिक एसिड. डायरेक्टली आपको फॉर्मूला इसका लर्न करना पड़ेगा. क्या होता है क्रोटोनिक एसिड, आप याद रख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ सकता है एग्जाम में. लास्ट ईयर आया था एक ऑनलाइन सेट में, पूछा गया था क्वेश्चन ये क्रोटोनिक एसिड के लिए. sp3 sp2 sp2 देन अगेन हियर कार्बोनिल ग्रुप है, क्या रहेगा ये, sp2 रहेगा. तो कार्बन एटम बेसिकली ये वाले पार्ट्स आते हैं कि जितने भी अक्राइलिक क्रोटोनिक एसिड में कार्बन एटम्स हैं उसमें कितने sp3 रहेंगे और कितने sp2 रहेंगे. ये तभी पॉसिबल है जब आपको फॉर्मूला और कार्बन एटम्स के बीच में लिंकेज पता होगा एग्जैक्टली. बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी इसमें, याद रखना पड़ेगा इसमें. नेक्स्ट इज पायरुविक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटी में ही पूछा हुआ है, फॉर्मूला पायरुविक एसिड क्या होता है. नेक्स्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं. डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, सी where two carboxylic groups are present are dicarboxylic acids, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिखे हैं यहाँ पे आपके लिए. ऑक्सैलिक एसिड जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था आपको. ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है, दिस इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का हाइड्रेटेड फॉर्म है कौन सा, .2H2O. इट मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो उस केस में आपके पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑक्सैलिक एसिड का हाइड्रेटेड फॉर्म. नेक्स्ट इज एडिपिक एसिड. ये आपके पास एक और चैप्टर में है जहां पे पॉलीमर आता है, ठीक है, पॉलीमर. दिस इज एडिपिक एसिड in which 2 carboxylic groups are present at the terminal and total number of carbon atoms in adipic acid are 6. नेक्स्ट इज मेलोनिक एसिड. उतना ज्यादा नहीं पूछता मेलोनिक एसिड से रिलेटेड, बट ट्राई करिए फॉर्मूला राइटिंग में प्रैक्टिस करने का. सक्सिनिक एसिड पूछा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पूछा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के काउंटिंग से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है. हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सक्सिनिक एसिड, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली पूछता है आपसे टार्टरिक एसिड को लेकर के क्वेश्चन. हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन टार्टरिक एसिड. कितने कायरल सेंटर्स हैं यहाँ पे. अगर हम इसको पूरा एक ग्रुप कंसीडर करते हैं तो ये कायरल सेंटर है, और इसको पूरा एक ग्रुप कंसीडर करते हैं तो ये कायरल सेंटर है. मतलब आपके पास कितने कायरल सेंटर्स हो गए यहाँ पे, 2 कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन टार्टरिक एसिड. सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स भी क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज आइसोमेरिक पार्ट्स जीओसी का भी पार्ट होता है इसमें सीईटी के सिलेबस में. तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूले के वहां से आइसोमर्स के फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट कर देते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, एनी वन ऑफ यू चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए. टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन केस ऑफ टार्टरिक एसिड 4. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. काफी सारे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. कायरल कार्बन एटम्स आर 2, सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 4, बिकॉज फॉर्मूला ही है आपके पास 2 पावर n, सो दैट विल बी 2 पावर 2 इन केस 4 हो गया, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द टार्टरिक एसिड. इससे ज्यादा कुछ इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज या फिर इसके केमिकल रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता इसमें. नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिट्रिक एसिड, जो अभी तक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये. हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन सिट्रिक एसिड. कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर 3. याद रखेंगे, दिस इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स आर ओनली, कायरल कार्बन एटम्स है यहाँ पे, इधर तो दिख भी नहीं रहा है एक भी, ठीक है. नो, यस, वेरी गुड. नॉट एनी कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास CH2COH और इधर भी आपके पास CH2COH, दोनों साइड में सेम हो जाएंगे.
तो कायरल सेंटर इज नॉट प्रेजेंट। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात अगर आ जाएगी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स खाली 0 ही लिखना है आपको ऑप्शन में, और कुछ भी रिप्लाई नहीं करना है इसमें। क्लियर हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर 0 इन केस ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक सिट्रिक एसिड। लेकिन टार्ट्रिक एसिड में अगर पूछेगा तो कितना होगा? 4। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड के फॉर्मूले में, तो लेकिन अगर आप राइटिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली फॉर्मूलेज याद रहेंगे आपको। ठीक है, फॉर्मूलेज याद रहेंगे। अब इससे ज्यादा डार्क पेन कौन सा लेके आऊंगा मैं? इससे ज्यादा डार्क पेन आई थिंक नहीं रहेगा। ब्लैक पेन। ब्लैक पेन ही तो यूज किया है, जो पेज पे सामने आपको दिख रहा है सब ब्लैक पेन से ही किया है बेटा। सर नहीं, जो हाईलाइट करना हाँ वो सब ब्लैक से कर सकते। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से देखता हूं मैं, नेक्स्ट पेज से ब्लैक पेन यूज करता हूं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपके पास। हाँ, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे जनरल रिएक्शंस दिखे हैं, बट आपको मैं एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा साथ में ही, थोड़ा ध्यान देना। जैसे आरसीएन नाइट्राइल्स के साथ प्रिपरेशन करते हैं बेटा, तो हाइड्रोलिसिस करना होता है, नाइट्राइल्स के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। दिस इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सिल इमाइन, हाइड्रोक्सी इमाइन बोलते हैं आप इसको। ठीक है, NH और OH कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ऐसा नहीं बोलना यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन है। दिस इज इमाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ हाइड्रोक्सी, या हाइड्रोक्सी इमाइन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, which is resonance stabilized with amide. It means आपके पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होता है, हाइड्रोजन एटम का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, then you can see this hydrogen atom turns towards this one and this pi bonding electron turn towards oxygen, तो आपके पास आ गया अमाइड। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लिया तो आपके पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट तो आपके पास 1 मॉलिक्यूल वाटर लिया आपने, तो पहले क्या बनेगा? अमाइड। फिर से आपने एसिडिक हाइड्रेशन किया तो आपके पास बन गया ये। दूसरा है आपके पास फर्स्ट स्टेप में, सिंगल स्टेप में ही आपके पास ये रिएक्शन है, तो क्वेश्चन भी आपके पास दो टाइप से आते हैं। इन केस अगर दिया हुआ है आपके पास कुछ रिएक्शन ऐसा कि मान लीजिए है हमारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और डायरेक्ट यहां पे लिख दिया है 2H2O, इधर दे दिया इन्होंने H+। ठीक है, अगर ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है तब आपको डायरेक्टली लिखना है कि यहाँ पे RCOOH बनेगा और NH4Cl आ जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्टेप में कन्वर्जन, एंड इन केस यू हैव टू फाइंड आउट A and B बोथ, इन दैट केस आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, सेम कंपाउंड रहेगा, यहाँ पे बोल देगा जस्ट HOH के साथ हमने A में कन्वर्जन कर लिया, फिर से इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, जस्ट इतना ही लिखेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे B बन रहा है, A एंड B रेस्पेक्टिवली। अब आपको सीक्वेंस में अरेंज करके देना है, तो आपको A में हाइड्रोक्सिल अमाइन कंसीडर नहीं करना है, आपको A में स्टेबल प्रोडक्ट अमाइड कंसीडर करना है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे आप, हाइड्रोक्सिल अमाइन कंसीडर नहीं करना है, क्या कंसीडर करना है आपको? अमाइड। ठीक है, इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन अगर आता है तो आपके पास ऑप्शन में क्या रहेगा? अमाइड। ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन, जो उसमें आके गड़बड़ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अमाइड एंड क्या मिल रहा है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉसिबल है आपके पास फॉर्मूला दिया रहेगा या नेम दिया रहेगा, जैसा भी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्ड करना है इसमें। करेक्ट, सो दिस इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, या फिर इसको हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, बिकॉज ये खुद ही एसिड है, एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलाइज हो जाता है और कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, आपके सामने दिख रहा है रिएक्शन, लास्ट में यहाँ पे RCOCl plus HOH changes into RCOH, that is carboxylic acid, and HCl will be removed at the end. Clear? और ये बनेगा किसमें? गैसियस में बनेगा,
ये ध्यान रखना है, कभी कभी यहाँ पे एरो नहीं लिखा होता ऑप्शन में, कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल मैं अभी देता हूं आपको इसका भी। ये रहा आपके पास सेकंड वाला पार्ट, एसिड एनहाइड्राइड, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, या समटाइम्स इसको आप हाइड्रेशन भी बोलते हो। वाटर के साथ ही रिएक्शन है और टोटल वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए हम हाइड्रेशन वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन सिंपल है, देखेंगे आप यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया H, ये पूरा पार्ट आप एक साथ कर दीजिए और OH को एक साथ कर दीजिए। यहाँ पे एक बेटर कॉन्सेप्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन कैसे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यस यस बेटा, एनी डाउट, यस स्टूडेंट्स, चलिए। मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स के केस में मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, अगर आपके पास सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो सेम टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं पीछे, आपको करने हैं सॉल्व। चलिए ये तो हो गया हमारे पास, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये हो गया आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दो पार्ट, तीन ही स्लाइड्स दिख रहे हैं, yes. Now next third method is given here from esters. This reaction is also called as hydrolysis of ester, in which ester undergoes reaction with water in the presence of dilute HCl or dilute H2SO4 to form mixture of carboxylic acid and alcohol. क्या मिलेगा आपके पास, mixture of carboxylic acid मिलेगा और alcohol मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे RCOR है, HOH के साथ हमने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, कभी कभी यहाँ पे मिनरल एसिड इंडिकेटेड रहेगा, तो भी सेम आंसर है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर आपके पास एस्टर है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो आप, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे पॉसिबल है, एरो के ऊपर इंडिकेटेड होगा आपको, NaOH aqueous डाइल्यूट और KOH aqueous डाइल्यूट, in that case also you will get salt and mixture of alcohol। ये दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, केवल सिंगल स्टेप लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको कन्वर्जन में दिखाना है RCONA और R-OH, वापस अगर हाइड्रोलिसिस किया तभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन इंडिकेट करना है। अगर फिर से 2 स्टेप्स नहीं दिया, मतलब ओवरऑल 3 स्टेप कन्वर्जन नहीं हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन में केवल ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन कोई भी एक आ जाता है दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज नोन एज सपोनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ था लास्ट टाइम सीटी ऑनलाइन एग्जाम में ही, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज नोन एज सपोनिफिकेशन। आपने पढ़ा होगा सोप का प्रिपरेशन करते हैं, सोप का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को अगर हम सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है हमारे पास, लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को बोलते हो आप सोप, ठीक है। तो सोप बनाने का जो मेथड है बेसिकली वही क्या है, सपोनिफिकेशन। बनता कैसे है, बाय यूजिंग लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अराउंड C17 मींस 15 या फिर 17 कार्बन एटम्स या फिर उससे ज्यादा कार्बन एटम के कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करेंगे हम, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके साथ हम रिएक्ट करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट, दैट इज नोन एज सोप। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे अल्काइल बेंजीन के साथ, ध्यान से समझिएगा इसको। अल्काइल बेंजीन का अगर हम रिएक्शन कराते हैं देन प्लीज रिमेंबर हियर दिस मे बी 1 डिग्री कार्बन एटम और 2 डिग्री कार्बन एटम, इट मींस बेंजीन रिंग के साथ आपके पास कितना भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अटैच हो, only the carbon atom which is directly attached to the aromatic ring, benzene ring, will undergoes oxidation, clear, and all other carbon atoms will be separated, different हो जाएंगे, वहां से बॉन्ड ब्रेक कर देना है आपको, इट मींस
आपके पास बस CH2 के बाद बाकी कुछ देखना ही नहीं है आगे कौन सा है हमारे पास, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में 2 स्टेप कन्वर्जन है, यहाँ पे प्राइमरी हो सकता है या फिर सेकेंडरी। ओनली इन दैट केस द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट HNO3 और क्रोमिक एसिड Cr2O3 भी लिख सकते हैं आप। यही आपके पास आ जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम salt of carboxylic acid which on acidic hydrolysis converted into benzoic acid, ठीक है। इसका मतलब कोई भी आप अल्काइल बेंजीन ले लीजिए, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, बेंजोइक एसिड बनेगा। पॉसिबल है आपके पास ये रिएक्शन डायरेक्ट ऐसा ना दे करके कुछ टर्न करके पूछ लिया जाए। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, यहाँ पे सपोज हमारे पास है CH3, यहाँ पे भी है CH3, और आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि KMNO4 in OH minus, what is the product? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? Will you say the name of the product? Please respond. चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। प्रोडक्ट का मुझे नेम चाहिए। आपको IUPAC नेम इजी लगता है, कॉमन नेम इजी लगता है, नो डाउट, आप जैसे चाहो रिस्पॉन्ड करिए, बट इसका IUPAC नेम आपको देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेन लिया है, सो डोंट बी कंफ्यूज हियर कि अभी तो आपने बताया था कि बेंजीन रिंग है, यहाँ पे तो साइक्लोहेक्सेन है। जब भी आपके पास साइक्लिक कंपाउंड आएगा और कभी भी टर्मिनल पे आपके पास अल्काइल ग्रुप है, KMNO4OH- के साथ आता है, दैट विल ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। 1,4 साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं, अभी भी नेम में रॉन्ग है बेटा, नेम में रॉन्ग है। 4 मिथाइल नहीं, ये भी नहीं रहेगा। और ट्राई करिए ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड। 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, दैट विल बी मच बेटर एज पर मॉडर्न IUPAC नेमिंग सिस्टम जो एक्सेप्टेड है अभी, ठीक है। 1,4 जो पोजीशन दे रहे हो आप पहले, वो पॉसिबल है कि बाद में भी हो, तो बाद वाले को ही आप करेक्ट करेंगे, बिकॉज 2003 कन्वेंशन बोलता है कि नंबरिंग ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप शुड बी ऑलवेज गिवन आफ्टर द नेम ऑफ पेरेंट चेन। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया, इधर हो गया आपके पास COOH, यहाँ पे आपके पास आ गया साइक्लोहेक्सेन, वापस आ गया हमारे पास इधर COOH, ठीक है। दिस इज द कंपाउंड, it means both of CH3 will be oxidized, correct, both of the CH3 will be oxidized। यहीं पे अगर बेंजीन रिंग है तो ये भी बेंजीन रिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। इज इट क्लियर नाउ? चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम। फ्रॉम अल्कीन्स, ये रिएक्शन 11th का है एक्चुअली, 11th स्टैंडर्ड में हाइड्रोकार्बन आपने स्टडी किया होगा। तो अल्कीन्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, that will be converted into carboxylic acid. Name of the compound for which one, which is given here, इसका नेम चाहिए बेटा। ओके, द कॉमन नेम अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, दिस इज कॉल्ड एज टेरीपेथाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? टेरीपेथाइलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, और कॉमन नेम से ही क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे CET में। IUPAC नेम नहीं रहेगा, क्लियर सुन लीजिए, IUPAC नेम नहीं होता है ऑलमोस्ट। टेरीपेथाइलिक एसिड कॉमन नेम से ही इसका क्वेश्चन आता है रिलेटेड, कभी भी किसी भी पेपर में आप देखिए। चलिए तो यस बोलिए सर, ये सब कंपाउंड के कॉमन नेम्स कहाँ पे दिए गए? मतलब टेक्स्ट बुक में सबके नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दे रखा था, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में चल रहे थे हम, तो हमने स्टार्टिंग में दिया था ना आपको, टार्टरिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। ये आपके पास मैंने फॉर्मूले इसीलिए दे रखे हैं, बुक से ही है वो, एक्चुअली वर्ड यूज किए हुए उन्होंने, कभी क्वेश्चन में पूछा है, दूसरे चैप्टर्स में रिलेटेड है। जैसे आपको ये वाला पार्ट मैंने बताया टेरीपेथाइलिक एसिड, तो टेरीपेथाइलिक एसिड आपका पॉलीमर वाले चैप्टर में है, लेकिन क्वेश्चन आपको कहीं से भी आएगा ना, उधर केवल टेरीपेथाइलिक एसिड दिया हुआ, टेरीपेथाइलिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया कि दिस इज टेरीपेथाइलिक एसिड। डेफिनेटली यू विल गेट द PDF, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा हम, अल्कीन के साथ हम लोग थे,
अल्कीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें इंपॉर्टेंट था एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन, और ये आपके पास बुक में है। इसका मतलब कहीं भी अगर आपके पास ये पार्ट है, सपोज आपके पास सपोज है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपने किसके साथ रिएक्शन कराया, KMnO4 के साथ, जस्ट इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हो। कभी कभी एरो के ऊपर इतना ही लिखा होता है, तो भी सेम मीनिंग है इसका कि हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं इसका अल्कीन का विथ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, दैट विल गिव्स COOH, ये बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहां वाला जो बॉन्ड है, देखिए ये दोनों बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ है, इसका मतलब ये कार्बन कार्बन जो लिंकेज है कंप्लीटली ब्रेक हो गया, तो ये दोनों बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, तो सेम टाइप से दिख रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2COOH। ठीक है, 2COH मतलब सेम टाइप का बनेगा, और इधर जो चेन आएगा वो तो एज इट इज अटैच रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको कि चेंजिंग कैसे होती है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। सपोज हमारे पास है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम, ये इंडिकेटेड है। आप जस्ट बोलिए इसका फॉर्मूला बता दीजिए या फिर नेम बोलिए, मिथेनोइक एंड इथेनोइक। वेरी गुड रिस्पॉन्ड। यस सर, मेथेनॉइक एंड मिथेनॉइक। एसिड करेक्ट है, कोई भी नेम आप यूज कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं। इथेनोइक मिथेनोइक, मैक्सिमम लोग आंसर दे रहे हैं। इथेनोइक एंड मिथेनोइक एसिड करेक्ट है, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस यू गॉट इट दिस वन। चलिए, ये तो हो गया आपके पास, नॉर्मल क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड। अभी हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे इसमें। सर बोलिए। सर फिर उसका आंसर CH3 डबल डबल COH होगा ना? नहीं आपने नहीं, बनाया तो ये स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। आपके पास कंपाउंड क्या था बेटा, यही लिखा था हमने यहाँ पे, देखिए हमने क्या लिखा था कि आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यस ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट जो बना आपके पास एक, दिस इज CH3 COOH, इधर वाला जो प्रोडक्ट बना वो COOH तो है ही, साथ में एक H और है, जस्ट इतना ही। मतलब फॉर्मिक एसिड बन गया और एसिटिक एसिड बन गया, दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा हमें जस्ट। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। By using Grignard reagent, this is known as ड्राई आइस। अगर आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो आप इसको बोलते हो ड्राई आइस, ड्राई आइस, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक और एरोमेटिक हर टाइप का हम बना सकते हैं इससे कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे प्रिपेयर करेंगे, एक एग्जांपल देखिए। सपोज हमने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, if it undergoes reaction with dry ice, means कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो होगा क्या एग्जैक्टली, दिस फिनाइल ग्रुप will be attached to the carbonyl carbon of carbon dioxide, and reaction takes place in the presence of dry ether and gets converted into C6H5C, C6H5A, C6H5, इधर आ गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OMGX। जैसे आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था बाय यूजिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सेम कॉन्सेप्ट है रिएक्शन का, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस HOH in acidic medium, this will give C6H5COOH carboxylic acid and MgOH and X। ठीक है, मीन्स हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइट सेपरेट हो जाएगा
और प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड। जस्ट यहाँ पे आपने C6H5 की जगह सपोज C2H5 रख दिया तो भी काम हो जाएगा हमारा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इससे, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड, हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड बाय यूजिंग ड्राई आइस? बना सकते हैं? ये स्टूडेंट्स, नो, नहीं बना सकते। एनीवन एल्स? और कोई बना सकता है? यस यस, ट्राई करिए। यस, बना सकते हो, चलो ट्राई करो बेटा। फॉर्मल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड और फॉर्मिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस वन और नॉट? फॉर्मिक एसिड बनाना है सपोज हमें, ड्राई आइस को यूज करके फॉर्मिक एसिड, आई थिंक वी कैन, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, यस और नो में आंसर देना है आपको। No, sir. नहीं बना सकते नो बेटा। सर। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ड्राई आइस। जस्ट ये क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ड्राई आइस। क्या हम नहीं बना सकते इसमें फॉर्मिक एसिड, मींस HCOOH को छोड़ करके, HCOOH को छोड़ करके बाकी हर टाइप के हम एसिड इसमें बना सकते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक, विच शुड बी मोनो कार्बोक्सिलिक इन नेचर। जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है बहुत इजीली हम इससे बना सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक के केस में आपको ऑलरेडी लेना पड़ेगा दोनों साइड में मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि डाई कार्बोक्सिलिक नहीं बन पाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक भी बना सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक भी बना सकते हैं। जैसे एक डाई कार्बोक्सिलिक का मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं अभी, चलिए बताइएगा इसमें पॉसिबिलिटी है या नहीं। क्या पॉसिबल है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनना? और कौन सा डाई कार्बोक्सिलिक बनेगा आपको जस्ट फाइंड आउट करना है यहाँ पे और रिस्पॉन्ड करना है। इधर हमने ले लिया MgBr, इधर भी हमने ले लिया MgBr, ठीक है। अब आपको क्या कन्वर्ट करना है इसमें, फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं इसका, नंबर 1 CO2 फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में लिख रहा हूं यहाँ पे H3O प्लस CO2 रहेगा, तो इन ड्राई ईथर होगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ। Which compound will be prepared? Terephthalate acid. Very good, very good. Terephthalate acid is formed. Terephthalate acid, almost आंसर आ रहा है। टेरिपेथैलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, वेरी गुड। चलिए सपोज हमें प्रिपेयर करना है पैथालिक एसिड, सो व्हाट इज द नेम ऑफ इनिशियल कंपाउंड? क्या लेना पड़ेगा हमें? टेरिपेथैलिक की जगह सपोज हम पैथालिक एसिड ले रहे हैं, तो उस केस में क्या रिएक्टेंट होगा हमारे पास इनिशियल? ग्रिग्नार्ड एजेंट, ऑर्थो पे MgBr होगा, वेरी गुड। दोनों पोजीशंस पे क्या हो जाएगा? ऑर्थो पोजीशंस पे MgBr हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए एक स्टेप और पीछे चले जाता हूं मैं अभी, ठीक है, एक स्टेप और पीछे जाता हूं मैं, आप आइडेंटिफाई करिएगा। हमारे पास एक कंपाउंड है A, एक कंपाउंड है A हमारे पास, जिसका इस कंपाउंड A का हम रिएक्शन करा रहे हैं 2Mg से, और ये कन्वर्ट हो रहा है X में। 2Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, कन्वर्ट हो रहा है X में इन ड्राई ईथर। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम के साथ मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, पॉसिबल है 2 नहीं देगा आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, X से बनाता है, ठीक है, एक कंपाउंड बनता है X, इसी का हमने लिखा CO2 और ड्राई ईथर अगेन, तो ये बन गया हमारे पास Y, इसी को हमने कन्वर्ट कर दिया H3O प्लस में, ठीक है, H3O प्लस में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास बन गया बेटा टेरिपेथैलिक एसिड, बन गया हमारे पास टेरिपेथैलिक एसिड। यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपाउंड A। A क्या है? बेंजीन। थोड़ा सोच के बोलना है बेटा, जोश में गड़बड़ी नहीं। क्या कंपाउंड रहेगा? A के प्लेस पे क्या रहेगा? 1,4-डाइब्रोमोबेंजीन। चलिए एनीवन एल्स वांट टू ट्राई?
यस, डाइहेलोबेंजीन पूछ रहे हो, बता रहे हो, क्वेश्चन मार्क डाला है बेटा, बताना है आपको आंसर, पूछना नहीं है अभी, आंसर ट्राई करिए। एनीवन एल्स? ये स्टूडेंट्स, वेरी गुड, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। डाइमिथाइल में कहां से रिएक्शन करेगा बेंजीन मैग्नीशियम के साथ? बस उसी को हमने एक स्टेप और पहले कर दिया बेटा। यस, 1,4 डाइहेलोबेंजीन लिख सकते हैं, गुड। यहाँ पे क्या रहेगा? 1,4 डाइहेलोबेंजीन। इट मींस सपोज आई एम राइटिंग हियर एज ए ऑप्शन दैट दिस शुड बी ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, ठीक है। तो अगर ये हमने ले लिया तो डेफिनेटली दोनों साइड पे मैग्नीशियम जाके अटैच हो जाएगा, CO2 के साथ 2 मोल आ जाएगा, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में। फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, टेरिपेथैलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। इज इट क्लियर? ये स्टूडेंट्स, Yes, sir. चलिए Sir, नेक्स्ट। यस बेटा बोलिए। sir, at 1,4 position, is it necessary you have the same halogen or थोड़ा दूसरा halogen use किया तो नो, भी देयर आएगा? शुड बी सेम हैलोजन, सेम हैलोजन शुड बी देयर। डिफरेंट हैलोजन Okay, के लिए आपके पास ऑप्शन में ही नहीं रहेगा। okay, sir. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास Mg के साथ एडिशन होगा बेटा X के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा इधर? ये बेंजीन रिंग तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? MgBr हो जाएगा, और इधर हुई हो जाएगा MgBr। ये रिएक्शन आपको ऑलरेडी बताया था हमने, हैलोजन डेरिवेटिव वाले केस में आपने देखा था कि अगर अल्काइल हैलाइड या हैलोएरिन रिएक्शन करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दैट विल गिव्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या बन गया आपके पास? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे CO2 के साथ क्या हो जाएगा? 2CO2 लिख देंगे जस्ट, यहाँ पे Y बन गया मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका टेरिपेथैलिक में। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। दैट्स ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन का। फर्स्ट हमने ले लिया यहाँ पे, in the reaction CH3COOH plus A changes into B plus H2, A is what? ये थोड़ा सा अलग हो गया, सोडियम on oxidation with which of the compound, ये तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो जाएगा। दूसरा हम आते हैं, रिएक्शन कहां से आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे थे अभी पीछे, आई थिंक दूसरे स्लाइड में रहेगा, मैं चेक करता हूं। PDF1 कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, ये प्रॉपर्टीज में आ गया। 1 मिनट। केमिकल प्रॉपर्टीज, CN, कुछ क्वेश्चंस लिए थे हमने सेपरेट क्वेश्चन पेपर से, वही देख रहा हूं मैं कि जैसे ही आ जाता है। नहीं, आई थिंक मिसप्लेस हो गया होगा शायद। एक मिनट, मैं देखता हूँ, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप फटाफट आंसर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है।
यस, जो आपको टॉपिक मैंने सिखाया जस्ट, मैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन वाले ले लेता हूँ, और ये हम बाद में देखते हैं इसको कहाँ पे आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड 1 में, चलिए क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। पैथेलिक एसिड इज व्हाट टाइप ऑफ एसिड? ये स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पैथेलिक एसिड कैसा है, किस टाइप का एसिड है, आपको जस्ट रिस्पॉन्ड करना है। पैथेलिक एसिड किस टाइप का एसिड है? डाइकार्बोक्सिलिक, वेरी गुड, फर्स्ट क्वेश्चन था। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हिच इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन? किसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं? क्वेश्चन है आपके पास। एस्टर, फैटी एसिड, एस्टर, एस्टर नहीं बेटा, एस्टर का आंसर नहीं है। एस्टर इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। जो सेकंड स्टेप आप रिएक्शन देख रहे होगे क्वेश्चन बैंक में अपने, उसमें दिख रहा होगा आपको लॉन्ग चेन फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। अभी जस्ट पीछे आपको बताया भी था हमने कि आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट विल बी सपोनिफिकेशन। आपके पास एस्टर है RCOO R-, आपने क्या किया, इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया इन डाइल्यूट HCl, ये कन्वर्ट हो गया आपके पास RCOOH प्लस R-OH में, ठीक है। लेकिन इसको आप नहीं बोल सकते कि सपोनिफिकेशन है। जब इसका आप रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ एक्वस में, दैट विल बी कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप? फर्स्ट दिया हमने पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड। दूसरा है हमारे पास ऑप्शन में एस्पिरिन, एस्पिरिन। तीसरा हमने ले लिया ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फोर्थ हमने ले लिया विनेगर, फोर्थ हमने ले लिया विनेगर। और फिफ्थ ले लिया हमने पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, ठीक है। इसमें किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं? कहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है? यस, एस्पिरिन, विनेगर, एस्पिरिन, पैथेलिक एसिड, दो ही दिया आपने ऑप्शन। मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? एस्पिरिन में है। अभी पीछे आपने फॉर्मूला देखा था 1 2 4 5, 1 में भी है, 2 में भी है, ये 3 है आपके पास, ये 4 है बेटा, और ये 5 है। अभी जरा सोच के आंसर दीजिएगा। एस्पिरिन, पैथेलिक, विनेगर 1 4 5 में है, 1 4 5। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला भूल गया, जस्ट खत्म हुआ चैप्टर, कंप्लीट वॉश आउट हो गया। वो बताया था आपको, पिक्रिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड एनी हाउ। 2 3 4 5, 2 3 4 5, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर है। 2 4 5, 1 2 4 5 नहीं, इसका आंसर सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है। आंसर देख के आपका कॉन्फिडेंट नहीं हो आप लोग आंसर देने में। 2 4 5 एस्पिरिन, विनेगर, पैथेलिक एसिड, वेरी गुड आंसर बेटा, वेरी गुड। 1 इज नॉट हैविंग COOH ग्रुप। क्या बताया था बेटा आपको मैंने? आपके पास पिक्रिक एसिड अगर है, एस्पिरिन फॉर्मूला है, पिक्रिक एसिड आप बोल रहे हो, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? यही है ना आपके पास, OH है, और ये 3 साइड्स पे क्या होता है? NO2। तो ये तो पिक्रिक एसिड हो गया आपके पास, है ना। तो इसमें कहां से आएगा? कार्बोक्सिलिक तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया।
कार्बोक्सिलिक किस में है? एस्पिरिन में है। एस्कॉर्बिक दिया हुआ है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, बट एस्कॉर्बिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता, ना तो इसका कभी फॉर्मूला पूछा जाता है, जस्ट कंफ्यूजन के लिए डाल दिया जाता है बीच में कार्बोक्सिलिक के कि एस्कॉर्बिक एसिड है ये, तो कंफ्यूज हो जाइए सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड को भाई भाई समझ के गड़बड़ कर दो, ठीक है? तो ऐसा नहीं। नेक्स्ट है आपके पास विनेगर। विनेगर यू नो वेल, कितना परसेंट होता है इसमें एसिटिक एसिड विनेगर में? यस ये स्टूडेंट्स, विनेगर में कितना परसेंट एसिटिक एसिड है? एनी वन ऑफ यू? 10% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। 10% अगर एसिटिक एसिड होगा तब तो खुजली करते करते परेशान हो जाएगा बेटा। 5 भी बहुत ज्यादा है, नहीं 5 भी नहीं होता है। विनेगर हैज 2 to 3% मैक्सिमम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। 3% से ज्यादा एसिटिक एसिड अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी में इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो एसिटिक एसिड उतना नहीं, 2 to 3% मैक्सिमम है। अगर आपके पास एक रेंज नहीं दिया हुआ है तो आप 2 को करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे, दैट इज ओनली 2% इज नहीं, 4 to 6 नहीं बेटा, 3% से ज्यादा। मैंने आपको बताया कि 3% से ज्यादा अगर हम एसिटिक एसिड यूज करेंगे तो इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, साइड इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी बॉडी की। पैथालिक एसिड आपने जस्ट देखा ही कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कई बार देख लिया आपने, ठीक है? सो ये हो गया हमारे पास कॉमन क्वेश्चंस। कुछ और कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैं एक रिएक्शन का फॉर्मेट दे रहा हूं, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होने की, ठीक है? चलिए ट्राई करिएगा। ट्राई करिएगा आप लोग। आपके पास है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, सॉरी आपके पास है एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिवन, जिसमें है हमारे पास दिया हुआ CH3, ट्राई करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। CH3 Cl, इसको हमने रिएक्ट कराया KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो गया A में। इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया H3O+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो कन्वर्ट हो गया B में। अब ये B का हमने रिएक्शन करा दिया NH2 के साथ, तो कन्वर्ट हो गया C में, और C को हमने हीट कर दिया तो कन्वर्ट हो गया D में, ठीक है? आपको जस्ट फाइंड आउट करना है यहाँ पे B और D क्या पॉसिबल है। अगर आप एबल हो फाइंड आउट करने के लिए B तक तो भी करेक्ट है, D वाला हम नेक्स्ट वाले में देख लेंगे टॉपिक में। D इज एसिटामाइड, वेरी गुड आंसर, मतलब पढ़ाई हो रही है, वेरी गुड। चलो B क्या है बेटा यहाँ पे? B, व्हाट इज प्रोडक्ट B? यस, एनी वन ऑफ यू ट्राई करिए। प्रोडक्ट B इज एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल नहीं, एसिटामाइड कहां से आएगा B? आंसर देख के मत बोलो बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखो, क्या क्या पूछा मैंने आपसे। आपको बताना है कि B क्या है, आपको बताना है कि D क्या है। आप पहले B को आइडेंटिफाई करिए, व्हाट इज प्रोडक्ट B? प्रोडक्ट B एसिटामाइड कहां से लेके आ रहे हैं? B is ethane nitrile. B इज Ethanamine. Sorry, ethanamine. Yes sir, ethanamine. नहीं नहीं बेटा, एक बार वापस दिमाग लगाइए। आपको हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पीछे पढ़ाया, अभी जस्ट अभी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको सिखाया। CH3OH तो नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, CH3OH नहीं आएगा। कुछ और ट्राई करिए, नहीं समझ में आ रहा है? यस, अभी करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हुआ, CH3COOH। आपको मैंने हिंट भी किया था पीछे कि अगर आपके पास H3O+ लिखा हुआ है, 2H2O लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या इंडिकेट करेंगे आप? डायरेक्टली एसिटिक एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे। कौन से ग्रुप को? नाइट्राइल ग्रुप को आप कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। क्लियर? बस ये ध्यान रखना है बेटा, गड़बड़ नहीं करना है। बी को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, डेफिनेटली अगर एसिड है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट को हीट करेंगे डिहाइड्रेट हो जाएगा और अमाइड में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है? अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हो तो फर्स्ट आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखे हम?
ए में CH3 CN बन जाएगा और CH3 CN का हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा बी आपके पास। CH3COOH। वेरी गुड, CH3COOH आ गया। वापस हमने इसका NH2 के साथ NH3 के साथ रिएक्शन कराया, ये NH3 है अमोनिया के साथ। CH3CONH2। नहीं नहीं नहीं, एसिड है और बेस है, क्या बनता है यहाँ पे, सॉल्ट बनता है बेटा पहले। तो CH3COO माइनस NH4 प्लस बनेगा, अमोनियम एसिडेट का सॉल्ट बनेगा। वापस जब इसको हम हीट करेंगे ना, तो ये हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है H2O में और फाइनली कन्वर्ट होता है अमाइड में, CH3CO NH2 और H2O चला जाएगा बाहर। करेक्ट, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं अच्छे हैं, देख लेते हैं उसको। 5 हो गए, 6 में आ जाते हैं। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन KCnH2O, वापस रिपीट हो रहा है वो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर, जस्ट अभी बताया आपको कितना, 2 to 3% या 2% लिख देंगे आप। नेक्स्ट है आपके पास कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट Y। Mg ड्राई ईथर, ये भी आपको पीछे एग्जांपल ही हमने बता दिया था। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल साइनाइड फॉर्म, चलो बोलो, इथाइल साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस बनाएंगे तो क्या बनेगा, व्हिच प्रोडक्ट विल फॉर्म, प्रोपेनॉइक। इथाइल साइनाइड है, ध्यान दीजिएगा, इथाइल साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, फॉर्मूला विल नॉट बी गिवन, इथाइल साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एसिटिक नहीं बेटा, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक इथाइल साइनाइड है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है नाइट्राइल वाले में, अमाइन में, ये दो पार्ट में एकदम बहुत अच्छी तरह से दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए कि if CH3C triple bond N is given, this is not ethyl cyanide, this is what, this is ethane nitrile, ठीक है। if they are asking for ethyl cyanide तो क्या हो जाएगा, C2H5 सेपरेट हो जाएगा, CN सेपरेट हो जाएगा। अब आप इसको इथाइल साइनाइड बोलोगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्या नाइट्राइल और साइनाइड में। नाइट्राइल है तो आयोपैक नेम होता है बेटा, ओवरऑल काउंटिंग होती है कार्बन एटम्स की, साइनाइड है तो फंक्शनल ग्रुप काउंट होता है CN। So इज इट क्लियर? यस बेटा बोलिए। so this can also be called propanenitrile, right? यस, प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज इथाइल साइनाइड, ये कॉमन नेम हो गया अगर आपने साइनाइड वर्ड यूज किया तो, या फिर प्रोपेन नाइट्राइल बोल सकते हो आप इसको। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल से, ठीक है, डायरेक्टली आता है प्रोपेन नाइट्राइल का कन्वर्जन। करेक्ट, तो ये तो हो गया आपके पास नॉर्मल क्वेश्चंस। अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्टार्ट करते हैं। केमिकल है, चलिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। यस, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करेंगे हम पहले। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, दिमाग लगाइएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब स्टडी करेंगे, दे कैन आस्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट एज अ कलरलेस लिक्विड। तो आपके पास C1 to C10, ऑलमोस्ट इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। रिलेटिव प्रॉपर्टीज आपको जस्ट कोरिलेट करना है, दूसरे के साथ कंपेयर करना है। C1 to C10 क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, एंड हायर आर वैक्स लाइक कलरलेस सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है आपके पास C1 to C4 soluble in water, but solubility will decreases as the number of carbon atoms increases or as the molecular weight increases. Clear? Melting point and boiling point will also increase as the molecular weight increase because van der Waals attraction increase हो जाएंगे, ठीक है।
बेसिकली ये 3 ही पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट है आपके पास एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरे चैप्टर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से बनते हैं और पूछते हैं एग्जाम में। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। किससे? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से होती है। रेजोनेंस टू फॉर्म द कार्बोक्सिलेट आयन बोल सकते हो आप, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन डिसाइड करता है इसके एसिडिक नेचर को। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन विल गवर्न द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, RCOH फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच इज गिवन हियर। ये है आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन। देखिए इन दोनों को आप कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हो। अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाना हो तो आपके पास ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ये आपके पास डॉटेड सर्कल आ जाता है यहाँ पे, और -½ यहाँ पे लिखते हैं हम, -½ यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में ऑल द एटम्स हैव इक्वल चार्ज। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर में या रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है, सारे एटम्स के पास इक्वल चार्ज होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वन। Acidity of carboxylic acid depends on the substituent. It means how the substituent will affect. As you know that if electron withdrawing groups are there, in that case they have tendency to attract the electron density towards their side. पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड में। तो जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट यहाँ पे अगर आपके पास COO कुछ ऐसा है, मान लिया इसके पास हाइड्रोजन डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, निगेटिव चार्ज इतना है अभी, या 5 सेंटीमीटर निगेटिव चार्ज है सपोज, ठीक है, OH मान लिया ऐसा है कुछ। अब यहाँ पे R की जगह हमने R' लगा दिया, जहां पे ये बोला कि R' का जो वैल्यू है वो लार्जर है एज कंपेयर टू R। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या कर दिया हमने, इंक्रीज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले 5 सेंटीमीटर थी सपोज लेंथ में, अब कितना हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R' के साथ, ये COO और ज्यादा इंक्रीज हो गई और यहाँ पे सपोज 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गए। अब उस केस में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के पास रहेगी, ऑक्सीजन को उतना इजिली वो अट्रैक्ट करके रखेगा, उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। इसका मतलब अच्छा एसिड कौन सा है, जो इजिली H+ को डोनेट करेगा। इजिली H+ को डोनेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक होता जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप attracts and electron donating group will increase the electron density। ठीक है सर? यस तो बोलिए। आपने वो 5 और 7 क्या लिखा है? जैसे मैंने OH एग्जांपल दिया कि सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में लिख रहा हूं, मान लीजिए निगेटिव चार्ज को मैं दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे सपोज 5 सेंटीमीटर लेंथ में मैंने चार्ज दिखाया कि ये इतना Okay. एरिया में कवर्ड है। अभी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इंक्रीज कर जाएगा तो ये चार्ज और ज्यादा दूर में फैल जाएगा, क्योंकि Yes, sir, प्लस right, sir. इफेक्ट इंक्रीज कर गया, तो Yes. अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और इस केस में H को बाहर ही नहीं जाने देगा। Yes, sir. यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेकर के आ जाएं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने ले लिया तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे हमने अटैच कर दिया अभी CH3, इसके साथ सपोज Cl लगा दिया, यहाँ पे H है, इधर हमने लिख दिया COOH, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसी को हम कंपेयर कर रहे हैं CH3 CH2 COOH के साथ। अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कौन सा है जो खींचेगा अपने साइड में, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा? यस स्टूडेंट्स, ज्यादा एसिडिटी कौन फॉलो करेगा, सेकंड तो वाला? पहला वाला। यस वेरी गुड। पहला। फर्स्ट विल बी मोर एसिडिक, क्यों? ये क्या करेगा, जो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी इसको इसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। क्या किया बेटा, इसने थोड़ा सा कम कर दिया इसको, जबकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, तो एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड में खींचेगा, इसके पास डेफिशिएंसी हो गई, ये इसका खींच लिया, ये इसका खींच लिया, ये इसका खींच लिया, ओवरऑल क्या है, हाइड्रोजन इजीली सेपरेट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट दिस वन। सर क्लियर हो गया आई थिंक? बोलिए। सर अगर पहले वाले में क्लोरीन आखिरी CH3 पे रहता तो हाँ। इट वुड बी लेस, राइट? हाँ, आते उसी पॉइंट पे, जितना ज्यादा डेंस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बहुत क्लोजर है तो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपने साइड में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा दूरी पे है
तो उस टाइम पे वो उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा, बट खींचेगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन ये जो इफेक्ट है दैट विल बी डिमिनिश्ड आफ्टर 4 कार्बन एटम्स, केवल 4 कार्बन एटम्स तक ही इफेक्टिव है, उसके बाद डिमिनिश हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो पेरेंट चेन में। क्लियर हो गई बात? सर बोलिए। सर तो like you said, now there are only 3, but if there were 5 carbons and let's say the 5th carbon from the COH group, it had Yes. a chlorine attached, so we would not consider it, right? No, you have to neglect, because you know that inductive effect is applicable up to 4 carbon atoms only. After that inductive effect will be diminished. ठीक है सर। जो मैग्नीट्यूड है इंडक्टिव इफेक्ट का वो खत्म हो जाता है वहां पे। सर एक एग्जांपल दे दोगे क्या? जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है सपोज Cl, इधर लिख दिया हमने, इधर आपके पास 5 कार्बन एटम्स या 4 कार्बन एटम ले लिया हमने, और यहाँ पे लिख दिया COOH ग्रुप है, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन एटम है, इसको तो काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। आपके पास कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4 है, मतलब 4 कार्बन एटम तक अगर क्लोरीन अटैच है तब तो एप्लीकेबल होगा। अगर मान लीजिए ये 5th कार्बन एटम मैंने ले लिया यहाँ पे और इसके साथ मैं क्लोरीन ले रहा हूं, तो यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट हम एप्लीकेबल नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। यस सर। केवल 4 तक कंसीडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। नेक्स्ट आए, यहाँ पे स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड है हमारे पास सपोज COOH, इधर है, इधर हमने ले लिया C के साथ NO2, इधर H2 है, यहीं पे हमने ले लिया COOH, इधर आपके पास CH2 है और इसके साथ Cl है, कौन सा ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर वाला होगा? पहला वाला। पहला सर, वेरी गुड, माइनस है, स्ट्रॉन्ग है। यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट ज्यादा है किसका? NO2 के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। ऐसी सिंपल एग्जांपल्स कंपैरिजन पूछता है, जैसे आपके पास अरेंजमेंट हो सकता है दिया हो कि आपके पास ये है कार्बन एटम्स और इधर COH है, यहाँ पे लगा दिया इन्होंने फ्लोरीन, फिर से ये कार्बन एटम ले लिया, COH लगा दिया, इधर लगा दिया ब्रोमीन, ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, सपोज ले लिया मैंने 1, 2, 3 एंड COOH है, इधर भी 1, 2, 3 एंड COOH है, इधर हमने सपोज आयोडीन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया, बोल दिया आपसे कि ये A, B, C और D, ये 4 है हमारे पास। इसको एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ऑर्डर वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इसमें आपको आंसर आता हुआ भी है तब भी आप गड़बड़ कर देते हैं, रॉन्ग आंसर टिक मार्क कर देते हैं। BDAC। BDS। बेटा ये क्या है आपके पास? यहाँ पे हमने क्या बोला आपसे कि ये 1, 2, 3 इरेज हो गया, इधर है आपके पास फ्लोरीन और इधर क्या है आपके पास? आयोडीन है। सर वापस D, B, देन AC। सबसे वीक कौन सा है? सर D। सबसे वीक है हमारे पास B। आयोडीन। यस, BDAC। सबसे वीक है, इससे आयोडीन। सर इंक्रीजिंग है। इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा है बेटा? ब्रोमीन। D। ब्रोमीन। ब्रोमीन आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग A, कौन सा? क्लोरीन। क्लोरीन। A। हो गया, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हमारे पास C, कौन सा? C। C हो गया, C। ठीक है। तो ऐसे ही कैसे भी टर्न करके क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, बट क्वेश्चन आते हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। नेक्स्ट आते हैं, इरेज करें इसको, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये तो हो गया था आपका, कहाँ गया भाई? हाँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है बस आपके। देखिए, नंबर ऑफ, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेंगे विद द सेम पोजीशन, उस केस में भी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ लिया है मैंने क्वेश्चंस, डायरेक्ट आंसर के फॉर्म में लिया है इसको।
तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसको ट्राई करिएगा लर्न कर लेने का। या कॉन्सेप्चुअल है एकदम, जैसे ये वाला फर्स्ट आपको बता दिया था मैंने अभी, सेकंड वाला ये तो हो गया आपका। फर्स्ट वाले में देखिए केवल क्लोरीन हमने अटैच किया है, यहाँ पे केवल क्लोरीन अटैच किया है। तो इस केस में क्या है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते जाएंगे उतना एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इसका इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। दूसरा है आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस वाइज, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। फोर्थ नंबर पे है आपके पास जस्ट लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या नहीं है। तो हम देखेंगे बेसिकली कंपैरिजन फॉर्मिक एसिड से आता है, HCOOH ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा या फिर CH3COOH ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा। एनीवन ऑफ यू बोलिए बेटा, कौन सा ज्यादा HCOH stronger रहेगा। Sorry, HCOH HCOH stronger है because Yes. इसमें और प्लस Carbon आई plus इफेक्ट है। है। वेरी गुड, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है यहाँ पे, जबकि इधर कोई प्लस आई है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा हो गया, ये वाला। वीक हो गया आपके पास एसिटिक एसिड। दूसरा है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से, ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही चल रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंपेयर करने का। देखो आपके पास है RCOOH, HOH है, ROH है, आपके पास अल्काइन है, अमोनिया है और अल्केन है। सिंपल है एकदम, बस समझना है जस्ट आपको कि ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। वाटर डेफिनेटली कम एसिडिक कैरेक्टर का होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल तो और ज्यादा बेसिक कैरेक्टर में चला जाएगा वाटर के कंपैरिजन में। इसके बाद एसिडिटी किसकी होती है, एसिटाइलिन। लास्ट में क्या है, अमोनिया बेस है आपके पास, और अल्केन भी आपके पास वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, जबकि ऐसा कुछ लेते नहीं हम बेसिकली, लेकिन ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर ऑर्डर दिया हुआ है आपके पास एग्जैक्टली तब आपको ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, RCOH, HOH, ROH, फिर CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, देन अमोनिया, देन अल्केन। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही ट्रेंड है अभी पूछने का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बस। नेक्स्ट है लिखा हुआ नोट हमने, स्मॉलर द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप ग्रेटर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी विल डिक्रीजेस इफ द ब्रांचिंग विल इंक्रीज, बिकॉज जितने ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपके पास आते जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन की तरफ, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करेंगे, तो OH को ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिडिटी इज आल्सो रिलेटेड टू पोटेंशियल ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एज वेल एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, दोनों इनवर्स रिलेशन वाले होते हैं। ध्यान रखना कि एसिडिटी इंक्रीज होती है अगर pKa का वैल्यू डिक्रीज करेगा, लेकिन Ka का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इसी में घुमा फिरा देगा क्वेश्चन आपको, कभी इसको डाउनवर्ड करेगा, इसको अपवर्ड करेगा, तो आप जो उसमें आके pKa को अगर आपने pH से कंसीडर कर लिया तब गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का स्ट्रेंथ है ये, तो जितना ज्यादा ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज अगर होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, और इन दोनों में भी इनवर्स रिलेशन है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इसलिए हम इसके लिए कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, केवल फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर बोलिए। तो वो जो लास्ट वाला है उसमें सर वो ट्रिपल बॉन्ड वाला पहले क्यों एनेस्थीसिस सर, उसको बता सकते इसमें सर? वो जो लास्ट ऑर्डर जो फिफ्थ वाला ऑर्डर जो लिखा है हमने हाँ इंपॉर्टेंट एग्जांपल में, उसमें सर ट्रिपल बॉन्ड वाला एनएच3 के पहले कैसे है? बेटा NH3 तो बेस है बेसिकली, आपका बोल सकते हो, अमोनिया तो एसिड है ही नहीं फिलहाल, ये तो बेस है ना। और ओके एसिटाइलिन जो है आपके पास कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ध्यान से समझिए, हाँ यस सर हाँ sp है, और sp के साथ अगर हाइड्रोजन रहेगा तो आपको पता है कि s कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब जो एसिडिटी होती है बेटा वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, यस सर क्योंकि आपके पास 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, यस सर तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ उतना वीक अट्रैक्शन हो जाएगा, और इन Yes, दोनों sir. के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हाइड्रोजन इजीली बाहर निकल सकता है। एनएस यही- कैरेक्टर का एसिडिसिटी भी ज्यादा होता है। डेफिनेटली ज्यादा होगी। हाँ और यही एक और रीजन है, आपके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये, कि अगर आपके पास एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन ये रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है। yes, किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, सोडियम मेटल के साथ। और यहाँ पे C माइनस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ बनाता है इधर, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे Na+। ठीक है, ये बनता है।
ठीक है, यही रीजन है, एसिडिटी वाला ही रीजन वहां भी है, सेम कॉन्सेप्ट है इसका। अच्छा आपने बॉन्डिंग का क्या बोला, वो sp बॉन्डिंग नहीं होगा, हाइड्रोजन कुछ बोल रहे थे ना, वीक बॉन्डिंग होगा। हाँ, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज कर गई। यस सर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर गई बेटा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना। हाँ यस सर। हाँ इसका मतलब CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, यस तो सर, वीक मेटल्स बॉन्ड। बहुत इजीली इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यस लेकिन सर। वहीं पे अगर हम इथीन ले लें या फिर अल्केन ले लें तो अल्केन ऑलमोस्ट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते मेटल्स के साथ। यस सर। क्लियर? ओके सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आंसर को हम एल्केन को NH3 के कहते हैं क्योंकि NH3 बेस है, बट एल्केन शो वीक एसिडिटी एसिडिक कैरेक्टर। हाँ, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को लेकर के, यहाँ पे अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन कैसे होता है हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की टेंडेंसी। तो NH3 को अगर आप डिसोसिएशन दिखाएंगे तो एसिड बेस के टर्म में ये हो जाएगा NH2 माइनस और H+, ये डोनेट करने की टेंडेंसी के बेसिस पे है। ठीक है, ओके सर। क्लियर हो गया? और जो बेसिक कैरेक्टर मैंने बोला रिलेटेड टू लेविस बेस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, उसके बेसिस पे मैंने डायरेक्ट बोला कि अमोनिया तो बेस ही है। यस सर, राइट सर। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा। तो बेसिकली डोनेटिंग इस पे NH3 इससे ज्यादा होंगे एल्केन। यस यस डेफिनेटली। थैंक यू सर। सर बेंजोनॉल ROH से कम एसिडिक होगा ना? कौन? बेंजेनॉल बेंजेनोन? नहीं, बेंजीन का अल्कोहल। अच्छा, बेंजीन का अल्कोहल मतलब फिनॉल आप बोल रहे हो, करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिनॉल डेफिनेटली कम रहेगा क्योंकि आपके पास ये COOH है, इधर आपके पास है बेंजोइक एसिड और इधर आप कंपेयर कर रहे हो फिनॉल को। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी रहेंगे बेंजोइक और इसको ही कंपेयर करना है ना बेटा। हाँ, और ROH RCOH ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ROH भी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसमें देखेंगे क्या, जो जितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहां पे, पहले इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लीजिए, तो आप देखोगे बेंजोइक एसिड में कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर शो करता है। बेंजीन कैसा है, sp2 हाइब्रिड वाला है ना, तो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, यहाँ पे माइनस आई है, जबकि यहाँ पे अगर R ले रहे हैं तो हम प्लस आई वाला है। ठीक है, हमको पता है कि प्लस आई वाला क्या करता है, डिक्रीज करता है, माइनस आई वाला इंक्रीज करता है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर रहेगा इसके कंपैरिजन में। अब अगर हम कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को, अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को, तो इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा हो जाएगा? देखिए फिनॉल H+ तो डेफिनेटली डोनेट करेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन में क्या है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबिलिटी वाला होता है अनायनिक फॉर्म में, मींस कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो करता है एज कंपेयर टू फिनॉल। सो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल। मतलब अभी भी इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये हायर नंबर पे है जबकि ये सेकंड नंबर पे चला गया। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं एसिडिक कैरेक्टर को, तो अल्कोक्साइड, आपको पता है अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, मतलब बहुत वीक स्टेबल है ये। ठीक है, तो इजिली H+ को गेन कर लेगा फटाक से वापस, तो ये सबसे कम हो गया। ठीक है, तो अगर इन तीनों में हम कंपेयर करते हैं फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में, तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा आएगा? कार्बोक्सिलिक, दूसरे नंबर पे कौन जाएगा? फिनॉल, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अल्कोहल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक इन नेचर एज कंपेयर टू फिनॉल, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू दिस वन। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड या कार्बोक्सिलेट अनायन। क्लियर? यस सर। तो बेसिकली कंपैरिजन इन तीनों में पूछता है। इनकेस अगर इसको भी इन्वॉल्व कर दिया तो माइनस आई वाला है, ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक हो जाएगा। मतलब आपके पास जब बेंजीन वाला रहेगा C6H5COOH, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू ऑल दीज।
आई थिंक अभी एसिडिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को। सर बोलिए। सर वो जो PHCOH है तो उसमें रेजोनेंस का कैंसलेशन होएगा ना, क्योंकि पीएच भी रेजोनेंस करेगा, COH किसमें? PHCOH। PHCOH में? हाँ हाँ तो उसमें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना, इलेक्ट्रॉन। देखिए लेकिन उसमें भी रेजोनेंस होता है ना, रेजोनेंस बेंजीन रिंग में भी रेजोनेंस होता है। वेट हाँ देखिए हाँ यहाँ पे होता क्या है, COOH ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये खुद भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। हाँ इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपने साइड में खींच रहा है ये, हाँ करेक्ट। तो रेजोनेंस में क्या आएगा, इसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी सब में क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। H+ को इजीली डोनेट नहीं करेगा, लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट है, और कुछ तो नहीं है बेटा इसमें। ओके। तो CO माइनस वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वहां पे जाएगा नेगेटिव। ओके डेफिनेटली हाँ हाँ। ओके, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसको देखते हैं। बहुत सिंपल से रिएक्शंस लिए हैं हमने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इजीली आपको समझ में आएगा ये। देखिए फर्स्ट हमने ले लिया यहाँ पे, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, पता है बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो 7वीं 8वीं से ही, कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब यहाँ पे सोडियम की जगह हम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कुछ भी ले लें, दैट विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस ओनली। कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भी। अगर यहाँ पे हम Na2CO3 और NaHCO3 लेते हैं तो ये दोनों भी कैसे हैं, बेसिक कैरेक्टर वाले हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट कैसे सॉल्ट है, बेसिक नेचर वाले सॉल्ट है ना। तो जब ये रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। CO2 गैस बाहर जा रही है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, तो जस्ट अभी पीछे हमने रिएक्शन में भी देखा किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनियम सॉल्ट बनता है, उसके बाद अमाइड में कन्वर्जन हो जाता है। यहां तक तो रिएक्शन था जिसमें हाइड्रोजन का OH बॉन्ड ब्रेक होता था, मतलब OH थर्ड वाला एक्सप्लेन करो एक और बार। यस, थर्ड वाला रिएक्शन आप एक्सप्लेन करो एक और बार। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला। देखिए ये तीनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है बेसिकली, कि हमारे पास है RCO, O और H है। हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो भी ये कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सोडियम, यहां से रिलीज किया। NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो डेफिनेटली Na+ फिर से आ गया इधर ही, और Yes. OH के साथ H2O बाहर गया। Yes, sir. सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ये दोनों कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर वाले सॉल्ट हैं, क्योंकि Yes, sir. स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है ये। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो पार्ट है वो Na+ देगा, इसका मतलब वापस से Na+ कहां पे अटैच होगा, एसिड के साथ ही। अब देखिए बचा हुआ पार्ट क्या है आपके पास, CO3 2 माइनस और H है। हाँ। CO3 और H है, NO2CO3 को ले लें Yes, हम। sir. Yes, sir. अब इसके लिए हमने 2 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 Na Yes. है ना इधर, हाँ इसका मतलब 2H गया यहाँ पे, तो बना क्या आपके पास H2CO3। हाँ। अब H2CO3 आपको पता है वीक एसिड है, डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो मेटल पार्ट RCO माइनस का रिएक्ट करते हैं, बाकी H के साथ बचाओ, जो बचता है हर केस में H। डेफिनेटली वही सेम। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे हमने बेस ले लिया अमोनिया, अमोनिया के साथ हम एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास, RCO अमोनियम आयन अमाइड बन रहा है। ठीक है, यहां तक जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑल दीज 4 रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड पे ये रिएक्शन है। कौन से, इनिशियल वाले जो 4 रिएक्शन मैंने आपको सिखाया अभी, दीज आर बेस्ड ऑन ब्रेकिंग ऑफ, लिख सकते हो आप, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ये हो गया। नेक्स्ट वाले जो रिएक्शन है, यहां पे आपने अल्कोहल वाली प्रॉपर्टी स्टडी किया होगा, तो आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो COH बॉन्ड ब्रेक होता है, किसके साथ, PCl3 के साथ, SOCl2 के साथ और PCl5 के साथ। ठीक है, इन तीनों के साथ आप बोल सकते हो प्रोसेस कौन सा है, ब्रेकिंग ऑफ C
OH बॉन्ड, COH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हर केस में क्या बन रहा है कंपाउंड RCOCl, इसका मतलब बन रहा है हमारे पास बेटा एसिड क्लोराइड। क्या बन रहा है यहाँ पे? एसिड क्लोराइड बन रहा है। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट है आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने सेम टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यहाँ पे एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है सिंगल टाइप का, तो हम V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ अगर हम इसको हीट करते हैं, दैट विल अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म एनहाइड्राइड। क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया, हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O, इधर है OH, वापस सेकेंड मॉलिक्यूल लिया CH3C डबल बॉन्ड O OH, तो एक का OH दूसरे का H बाहर चला गया, ये कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5, और इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 अगर हीट करते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाएगा, बन जाएगा CH3COO, ये वाला अपर पार्ट हो गया। वापस नीचे क्या है? COCH3 उल्टा ऐड हो गया, मतलब फिर से आ गया यहाँ पे COCH3। आप कंपाउंड को बोलते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहीं पे अगर आपने मिक्सचर ले लिया, सपोज इसके प्लेस पे आपने ले लिया मिक्सचर, तो उस केस में क्या बनेगा? देखिए मिक्सचर के केस में इसका मतलब अगर आप ले रहे हो CH3COOH और सपोज आपने ले लिया C2H5COOH, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इसमें सेटिंग में। देखिए इसको अगर हम ले लेंगे तो यहां से भी OH और H एक निकाल दीजिए, जस्ट यहां से ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CO, इधर आ जाएगा O, इधर आ जाएगा अगेन CO, C2H5। इस केस में आपके पास मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनता है। कैसा एनहाइड्राइड बनेगा? मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनेगा। एस्टर कहां से बना रहे हो बेटा? एस्टर नहीं है यहाँ पे, एनहाइड्राइड है ये, एसिड एनहाइड्राइड, मतलब एसिड आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर, एनहाइड्राइड है ये, एस्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? V2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना? हाँ वो लिखना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ पे तो P2O5 या V2O5 दिया ही रहेगा, ठीक है। मिक्स्ड एनहाइड्राइड के केस में ये बनेगा, ध्यान रखिएगा आप। जस्ट अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड और मिक्स्ड हाइड्राइड, तो आपको याद रखना है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम व्हाटएवर गिवन इनसाइड द रिएक्टेंट शुड बी प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। दोनों केसेस में क्या होना चाहिए बेटा? कार्बन एटम आपको फटक से काउंट करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड है, बहुत फास्ट आंसर आएगा, आपको रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट कार्बन काउंट करना उस टाइम पे जब आपके पास मिक्स्ड एनहाइड्राइड का नेम दिया हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अगर हम इसका सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये तो ऑलरेडी हो गया, एसिड हाइलाइड के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो भी आपके पास बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। मतलब क्या है? अगर हमने बेटा ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज हमने ले लिया CH3COOH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड हाइलाइड के साथ, अभी यहाँ पे हमने ले लिया C2H5 सपोज, अब यहाँ पे HCl ही बाहर जाएगा, मतलब OH बॉन्ड ही ब्रेक होगा बेसिकली, और कंपाउंड क्या बन जाएगा इधर? CH3CO, O तो ऑलरेडी है, इधर CO और C2H5, मतलब इस केस में भी क्या बनेगा आपके पास? एसिड एनहाइड्राइड ही बनेगा। ऐसे ही अगर सोडियम मेटल के साथ आप सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा दोगे तब भी बन जाएगा, मतलब H की जगह अगर हमने Na+ लिखा तो भी हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड सेम टाइप का बनेगा। यहाँ पे आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल हीटिंग में रिएक्शन हो जाता है। कैटलिस्ट कब रिक्वायर्ड होता है? P2O5 या V2O5, जब आपके पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को डिहाइड्रेट कर रहे हो उस टाइम पे। अगर आपके पास एसिड हाइलाइड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है या एसिड हाइलाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है तो उस केस में डायरेक्ट आप एनहाइड्राइड दिखाइए, जस्ट काउंट करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी इक्वल इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो हीट करने की जरूरत है ना जब हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड हाइलाइट दिया। हाँ बस
काउंट कर लीजिए कार्बन एटम कितने हैं, बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा आपको। रिएक्शन फटाफट दिमाग में घूमने लगेगा, क्या पढ़ा था आपने। चलिए लास्ट है यहाँ पे, अगर हमने कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ या मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन कराया, मिनरल एसिड बेसिकली वर्ड आता है यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हाट हैपेंस व्हेन मिनरल एसिड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, क्या बनेगा, एस्टर। अभी हमने पीछे देखा था, इसका जस्ट उल्टा था रिएक्शन कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल गया था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रिपरेशन वाले पार्ट में, और यही रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल कैरेक्टर का होता है। यूनिडायरेक्शनल हो जाता है कब, जब हम इसको हीटिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है, हीटिंग अप्लाई करते हैं तो ये यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। कब होगा यूनिडायरेक्शनल, इन द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ओनली, बिकॉज टेम्परेचर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे एस्टर बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये HCOH is more reactive towards formation of ester, and as the number of carbon atoms in the parent chain increases, the reactivity towards ester formation will decreases, and reactivity of alcohol to form the ester will decreases as the degree of carbon atom decreases। क्योंकि होता क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, H को इजीली बाहर नहीं निकल पाएगा, एस्टर नहीं बनेगा, ठीक है। रीजन सेम है जैसा आपको पीछे सिखाया, जस्ट क्लियर हो गया आई थिंक इतना। नेक्स्ट आते हैं, दो नेम रिएक्शन है यहाँ पे, एक तो है आपके पास हंस डेकर रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बेसिकली आपके पास आता है HVZ रिएक्शन से रिलेटेड। हैलोजिनो एसिड, अल्फा हैलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज applied as catalyst, used as catalyst, and reaction takes place between carboxylic acid having alpha hydrogen atom। कोई भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अगर वो रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, देन इट विल गिव अल्फा हैलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मींस अल्फा हाइड्रोजन एटम के प्लेस पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, जस्ट ठीक है, ऐड हो जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और हैलोजन ऐड हो जाएगा। क्लियर। लास्ट है आपके पास रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम ड्राई ईथर यूज करते हैं, दैट विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल, क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो। लास्ट है आपके पास रिंग सब्स्टिट्यूशन, कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जस्ट बताया आपको पीछे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग, तो उस केस में क्या होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे, नाइट्रो ग्रुप हो हैलोजन ग्रुप हो, ये दोनों किस पे जाएंगे, मेटा पोजीशन पे ही अटैच होंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, सर बोलिए सर बेटा। प्रीवियस पेज पे हमने एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर देखा था और हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का, सर उसके मेन रीजन क्या है सर? देखिए 1 मिनट, आपको एग्जांपल के साथ दिखा देते हैं वहीं पे। ये है आपके पास लिखा हुआ, ठीक है। आपने क्या किया, बेसिकली जो OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कौन सा जा रहा है, हाइड्रोजन एटम बाहर जा रहा है ना बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, और अल्कोहल का OH जा रहा है, तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को उतना जल्दी पकड़ के रखेगा ना वो, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज कर गई ना बेटा, इजीली हाइड्रोजन एटम बाहर नहीं जा पाया। क्लियर, रीजन सेम है, अल्कोहल कार्बन दोनों के सेम है ना। हाँ, अल्कोहल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्काइल ग्रुप होता जाएगा उतना डिफरेंटली स्ट्रॉन्ग होता जाएगा OH बॉन्ड, इजीली बाहर नहीं जा पाएगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा क्वेश्चन इधर लिखे थे हमने, हाँ आ जाइए क्वेश्चन में फटाफट देख लेते हैं, प्रैक्टिस इसका क्या आएगा। अल्काइल साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस विथ मिनरल एसिड फॉर्म, बोलिए फटाफट, क्या कर रहे हैं बेटा हम, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड का क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं विथ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का मतलब डाइल्यूट H2SO4 के साथ, यस वेरी गुड आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है।
पीछे हमने पढ़ा था ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हमारे पास है बेटा RC ट्रिपल बॉन्ड N, हम क्या कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये RCOOH में कन्वर्ट हो रहा है, बस एक ही स्टेप लिख दिया हमने और कुछ नहीं लिखा। When dry ice reacts with CH3 MgBr the product क्या बनेगा 167, क्या है ये सर ड्राई आइस रिएक्ट्स विद CH3 MgBr, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा एसिटिक एसिड, कैसे ड्राई आइस CH3, यस 2 कार्बन एटम्स हो जाएंगे। वेरी गुड आंसर, एसिटिक एसिड। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं हम फिर। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है बेटा बोलिए? CCl3COH। ए वाला स्ट्रॉन्ग है, CF3 वेरी गुड। CF3COH। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हैलोजन एटम तो सेम है इन तीनों ऑप्शंस में, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। 50 में देखिए यहाँ पे क्या है, A KCN के साथ ये बना रहा है, फिर अल्कली के साथ बॉयल कर रहे हैं तो B बन रहा है। A एंड B आपको फाइंड आउट करना है बेटा, सीक्वेंस याद रखिएगा, आंसर करेक्ट होता है दोनों ऑप्शन में, लेकिन सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा, ध्यान रखिए। KCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी, CH3Br और CH3COOH लिख सकते हैं सर बी C2H5OH दोनों पॉसिबल है यहाँ पे, C वाला भी हो सकता है B वाला भी हो सकता है, लेकिन C को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, B को लिखेंगे। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास KCN लिखा हुआ है और यहाँ पे इनकेस लिखता अगर अल्कोहलिक, तो हम क्या ऑप्शन देते? C वाले को कंसीडर करते हैं। अगर अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करता तो हम इसको C वाला ऑप्शन देते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब KCN के साथ जस्ट रिएक्शन दिया हुआ है, मीडियम प्रोवाइड नहीं किया है कि अल्कोहलिक है एक्वस है, तब हम ऑप्शन कौन सा क्रिएट करेंगे यहाँ पे? OH, ठीक है, C2H5OH और CH3COH। ध्यान रखिएगा बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक सोल्यूशन होता तो उस केस में CH3CN लिखते, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो OH लिखा हमने, जस्ट इतना ही है डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट। आपके पास Mg ड्राई ईथर है, क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? बोलिए बोलिए फटाफट, फिर से CO2 कार्बोक्सिलेशन कर दिया, B CH3 प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाँ क्या सर पूछा? डी Y का वैल्यू पूछा है ना, D, ये D। पूछा है आपसे, क्या रहेगा? सर डी बनेगा। डी बनेगा। कितने कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और ये 3, 4 वाला राइट होगा, कर दिया। कार्बन काउंट कर लीजिए बेटा पहले फटाक से, तो उसी में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इन 50 अमोघ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन इफ यू हैव डाउट। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पाया इसमें। अमोघ, डू यू हैव डाउट इन दिस वन 50? चलिए ठीक है, 50 का C, ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बस डिफरेंस क्या है, अगर अल्कोहलिक लिखा होता है बेटा तो हम इसको हैलोजन वाले को कंसीडर करते हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब रिएक्शन नॉर्मल गैसियस स्टेट में भी पॉसिबल है, तो उस स्टेट में हम अल्कोहल को कंसीडर करते हैं, दैट्स इट। 52, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फैक्ट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड कैन अंडरगो आयोनाइजेशन? आयोनाइजेशन, व्हाई नॉट B? 51 में बेटा B नहीं होगा, इसका रीजन क्या है देख रहे हो, यहाँ पे ब्रांचेस हैं, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दिया हुआ है और ये ब्रांच में तो आता नहीं है, तो चेन के लेंथ को बढ़ाता है ना, इसके लिए B ऑप्शन नहीं रहेगा, कार्बन काउंट करके अगर देख रहे हैं तो। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द फैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैन अंडरगो आयोनाइजेशन? क्या होता है रीजन? यस 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 यस, ट्राई करिए बेटा। रीजन पूछ रहा है ना, बी है ना? बी है, करेक्ट। हाँ, रेजोनेंस resonance स्टेबलाइजेशन अभी stabilization। पीछे बताया था, इट विल फॉर्म द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, सो हो गया ये काम। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन? बोलिए, अभी आपने पीछे पढ़ा, जस्ट देखा रिएक्शन, ए का वैल्यू क्या है? क्या बेटा? ऑप्शन ए, बी ऑप्शन, सॉरी डी। याद रखिएगा अगर आपके पास ड्राई ईथर और H+ लिख दिया, इसका मतलब SnHCl में ड्राई ईथर नहीं आता या ईथर नहीं,
ZnHCl में भी नहीं आता, इसमें भी तो ईथर नहीं आता, ये खुद ही सॉल्वेंट है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, पूरे सिलेबस में यही दिया भी है आपको। सेपरेशन अगर- अल्कोहल में भी था LiAlH4। यस यस यस, अभी पीछे दिखाया भी था मैंने, LiAlH4 ही हमेशा रहेगा और यही सिलेबस में दिया हुआ है बेटा, दिमाग में रखिए। आपके सिलेबस में दूसरा कुछ दिया ही नहीं है, और सीटी में भी आएगा तो एटलीस्ट आपके सिलेबस से ही पूछेंगे, एक्स्ट्रा बाहर से नहीं इंक्लूड करते, ये ध्यान रखिएगा। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, बट मान के चलिए 90% यही होने वाला है। 89, when acetic acid is heated with phosphorus pentoxide it gives anhydride, the reaction is Dehydration. dehydration, very good। चलिए 90 में देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर Sir, option A. ऑप्शन ए A करेक्ट ऑर्डर, वेरी गुड। लास्ट देखिए 91 में, प्लेस द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, वापस आ गया, बोलिए बोलिए फटाफट। 91 में क्या करेक्ट आंसर है बेटा? 91 यस सर 1 2 Sir, 3 option A. यस। अभी पीछे मैंने बताया आपको कि एस Electric कैरेक्टर bond. अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा, ठीक है? तो इजिली H+ बाहर जा सकता है, करेक्ट। 92, व्हेन प्रोपियोनिक एसिड इज हीटेड विद अमोनिया, क्या बनेगा? प्रोपेनोइक एसिड अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं हम, जस्ट ये ऑप्शन Option A. B। हीट कर रहे हैं, क्या बनेगा? हाँ, B. Option B. प्रोपेनोइक है, मतलब ये है आपके पास CO B अमोनिया के साथ है। क्या बोला जा रहा है बेटा? समझिए ध्यान से, हीट बोला जा रहा है आपसे कि हीट किया जा रहा है, मतलब एक स्टेप इन्होंने बीच में गायब कर दिए कि ये न्यूट्रलाइजेशन में भी जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CO देन NH2 और वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर, ठीक है? तो ऑप्शन क्या मिल गया आपके पास? C. सी मिल गया। ए में नहीं आ सकता ना बेटा, 2 ही कार्बन एटम है हमारे पास, 3 कार्बन एटम का कंपाउंड ही दिया है, तो 2 वाला तो वैसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है? मतलब ये तो देखते ही बंद कर दो कि ये जरूरत ही नहीं है हमारे पास, बाकी 2 में देखना है बस, ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं हम। Oxidation of toluene with CrO3 in the presence of acetic anhydride gives product A which on treatment with aqueous NaOH produces, क्या बनेगा? बोलिए बोलिए फटाफट। टोलुइन का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अभी पीछे सिखाया था प्रिपरेशन में कि अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन है और उसका हम ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनता था? अल्डिहाइड, CrO3 है ना, तो CrO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, या फिर क्या लिखा था? क्रोमाइल क्लोराइड में आपने पीछे वाले अल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन देखा था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेटा क्या लेते हैं हम? क्रोमिक ऑक्साइड लेते हैं CrO3, और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, तो क्या बनता था? इटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनता था, गिव्स अ प्रोडक्ट A व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH, मतलब फिर से हमने इसका एक्वस NaOH के साथ करा दिया तो क्या बनेगा? C. एसिड बनेगा, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्डिहाइड यहाँ पे आ जाएगा फिर से, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी। सी विल बी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 150 वाटर, सर थोड़ा क्लियर नहीं है स्क्रीन सर, क्या बेटा? स्क्रीन थोड़ा क्लियर नहीं है। यहाँ पे हाँ, आई थोड़ा थिंक जूम कर दो। जूम कर जूम करूंगा और फट जाएगा ये, भी ठीक है सर। ठीक है? दिख रहा है आपको तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एस्टर है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बोलिए फटाक से। Sir, Option option B. ये स्टूडेंट्स ट्राई। नहीं सर, डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, यस C6H5CH2OH है और CH3OH लिखा है। सर, OCH3 निकल जाएगा ना? OCH3 बाहर जाएगा, यस यस, ठीक है। कितने लोग करेक्ट है? रिस्पॉन्ड करिए भाई, रिस्पॉन्ड करिए फटाफट बेटा, मैसेज करिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आंसर डी, डी डी डी
बी नहीं आएगा बेटा, बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो आपने दोनों चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसको, अभी पीछे भी देखा था आपने कैसे रहेगा, और इसमें भी देखा आपने कि अगर आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, यहाँ पे RCOOH अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लिया इसने R- सपोज, तो आपने पहले भी देखा था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, RCOH H2 हो जाएगा और इधर R-OH हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता था अगर आपने एस्टर लिया तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। करेक्ट, हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हमेशा ये वाला पार्ट होगा, कभी H+ लिखा रहेगा, कभी ड्राई ईथर लिखा रहेगा, कभी HOH लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। हमेशा जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए तो पार्शियल रिडक्शन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के साथ आप अल्कोहल बनाएंगे। तो तीनों में सेम प्रोडक्ट आएगा ना, ड्राई ईथर HOH H+ विद LiAlH4। C6H5 CH2OH आएगा और CH3OH आएगा। नहीं सर, हम जब H+ ड्राई ईथर HOH लेंगे विद LiAlH4 तो तीनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा ना? सेम ही आएगा, सेम आएगा। ओके, थैंक यू। ये ओवरऑल कंडीशन ही वही है, जहां भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा ये तीनों आपके सिलेबस में हर जगह मिलेंगे बेटा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आधा अगर दिया हुआ है कंडीशन तो भी वैसे ही प्रोडक्ट निकालना है, फुल कंडीशन दिया हुआ है तो भी वही प्रोडक्ट निकालना है। थैंक यू। नेक्स्ट आ जाइए। छोटा हो जाए भाई। चलिए, फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी लिखा था पीछे हमने, रिएक्ट क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, बना सकते हैं? Yes, sir. यस बना सकते हैं। अगर साइनाइड ही बोला इसने तो HCl ले लेंगे हम, और क्या। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा, Yes. फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बनेगा, डेफिनेटली मिथेनॉल से बन Yes, जाएगा। sir. कार्बोनेशन ऑफ No, CH3 sir. बनेगा, बिकॉज 2 कार्बन एटम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए फिर। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ RX गिव्स, क्या मिलेगा यहाँ पे? बोलो बोलो फटाफट। Sir, what are the options? सर क्लियर नहीं है SSP। क्लियर नहीं है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अभी बराबर दिखेगा आपको। चलिए अभी बराबर है। यस सर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड, अरे कहां पे थे हम लोग, ऊपर। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ RX, मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा बेटा? Esters. एस्टर बनेगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RX के साथ। वेरी गुड। चलिए आंसर क्या हो गया आपके पास? कौन सा? बी, करेक्ट। 87 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? Sir, unsaturated मतलब there'll be a double bond or triple bond, right? यस ये डेफिनेटली, क्योंकि कार्बोक्सिलिक को तो हम अनसैचुरेटेड बोल नहीं सकते। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। एनीवन एल्स? Yes, sir. C. सी विल बी करेक्ट आंसर। जस्ट हमें देखना है CnH2n कहां पे है। CnH2n +1 आ रहा है 23 में, 11 2 जा 22 +1, 15 2 जा 30 +1, 34 +1 आ रहा है, इधर ही नहीं आ रहा है, 31 दिया हुआ है तो करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइए। प्रोपियोनिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल gives a product, same product can be obtained from which reaction? मतलब आपको जस्ट कंपेयर करना है दोनों रिएक्शन को। प्रोपियोनिक एसिड और इथाइल अल्कोहल है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच रिएक्शन? यस Sir, बोलिए। D option. सर बी बी। D option. B option. sir. प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड C2H5ON ने अगर हमने ले लिया तो 2 मोल एस्टर बना दिया। प्रोपियोनिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन एटम उधर 2 इधर। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बेटा? बी बी सर। वेरी गुड। चलिए मतलब आ रहा है आंसर आप लोगों को अभी। नेक्स्ट आ जाइए। कॉमन नेम ऑफ लोअर फैटी एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम, बहुत सिंपल है, सोर्स ऑफ डेरिवेशन ए। Oxygen. वेरी गुड।
190 फैटी एसिड रिएक्ट्स विथ एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4, वापस रिपीट हो गया, एस्टर है, ester, एस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, which of the following is called इथेनोइक एसिड, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन बोला है। option B, चलिए क्या बात कर रहे हो भाई, इथेनोइक एसिड की बात हो रही है बेटा। हाँ सर Option option B, बी, यस आई थॉट डी, मुझे सुनने में फर्क पड़ा फिर। 92 when carbon dioxide is passed through an ethereal solution of CH3 MgBr and the product is treated with mineral acid will give, क्या मिलेगा, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल मिलेगा। वेरी गुड आंसर, इथेनॉल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? तो लास्ट वाला नहीं Yes, समझा sir. सर। नहीं समझा? नहीं सर। रिएक्शन ही तो है इसका लिखना, जस्ट देखिए क्या बोला है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ CH3 MgBr, लिख देते हैं रिएक्शन सीधे। कार्बन डाइऑक्साइड है COO, किससे पास आउट कर रहे हैं, इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ CH3 MgBr। चलिए CH3 MgBr के साथ हमने रिएक्ट करा दिया इन ईथर, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड। अब जो बन रहा है सपोज A, इसको ट्रीट करें मिनरल एसिड, सपोज हमने ले लिया डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस इसका, ठीक है, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपके पास ये वाला अल्काइल ग्रुप आ गया इधर, हाँ। तो A के प्लेस पे क्या बन गया बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O OMgBr, और हमने क्या किया, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो बन गया आपके पास CH3 COH, करेक्ट। चलिए ये तो हो गई बात हमारे पास, ये ऑप्शन क्वेश्चन सी करेक्ट है ना? Yes, sir. इथेनोइक एसिड ही बनेगा, करेक्ट। सर आपने शायद इथेनॉल बोला था। नहीं इथेनॉल नहीं, इथेनोइक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ इथेनॉइक एसिड, राइट। बेटा बिना पेन और पेपर के तो आंसर आपको तभी मिलेगा जब आप रिएक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पहले पेन पेपर यूज कर लेंगे तो एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पहले पेन पेपर यूज नहीं किया है तो एग्जाम में जरूरत पड़ने वाली है फिर पेन पेपर की, ठीक है। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे आपने, ऑर्गेनिक का यही एक ट्रिक ही है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं ऑर्गेनिक का। जितना ज्यादा से ज्यादा आप राइटिंग में रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। विदाउट सॉल्विंग, विदाउट कुछ लिखे आप रिएक्शन एकदम आराम से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले से राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए गुड अटेम्प्ट, नेक्स्ट आते हैं। Which of the following reagent is not useful to replace hydroxyl group from COH group by Cl atom? बोलो। मीन्स हम डायरेक्टली बनाना चाहते हैं कि COH ग्रुप बन जाए हमारे पास, लेकिन हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली रिप्लेस नहीं हो सकता। बोलिए जल्दी से। A, वेरी गुड। HCl के साथ नहीं बना सकते, वेरी गुड आंसर। एसिटिक एसिड कैन नॉट बी, आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए बेटा, समझ में आएगा कि हाँ सबको आ रहा है। एसिटिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एसीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा बेटा। B answer. कीटोन से नहीं मिलेगा। Sir, all of these. एसिटिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो एसीटोन से तो मिलेगा डेफिनेटली एसिटिक एसिड, सर उससे लोअर एसिड मिलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ मिलेगा। समझिए पहले, एसीटोन में कार्बन एटम कितने हैं? 3 है। तो एसिड कितने कार्बन एटम का? इथेनोइक 2 का। 2, यस सर, साइड से एक मिथाइल ग्रुप हटा रहे हो ना, तो 2 कार्बन एटम वाला तो एसिड वैसे भी मिल रहा है आपके पास, यस सर। तो इथेनोइक तो एसीटोन दे देगा। एसीटोनाइट्राइल बोला है इसने, बस कहानी घुमा दी है इसने। एसीटोनाइट्राइल भी क्या है आपके पास? CH3CN भी दे देगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज नॉट एबल टू गिव, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी दे देगा। हाँ सर दे देगा, क्योंकि विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, कीटोन वापस कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। तो ऑल ऑफ दीज एसिटिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोनाइट्राइल। एक मिनट, तो एसीटोनाइट्राइल में तो आपके पास CH3CN आता है, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 1 स्टेप में नहीं मिलेगा, 2 स्टेप में कन्वर्जन होगा, एसीटोन में मिल जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन नंबर बी को ही हटाइए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 स्टेप में कन्वर्जन देगा, बाकी सब तो आ सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की बात आ रही है तो ठीक है।
क्योंकि आइसोप्रोपाइल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन, एसीटोन मिलेगा, और एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, विगरस ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा अलग से। बी ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर बी को हटा दीजिए आप, मतलब ये नहीं देगा, बाकी सब दे देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, एसिड नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सी कैन बी एक्सप्लेन अभी। Inductive effect. विनेगर इज Inductive एक्वस effect. सॉल्यूशन, विनेगर इज एक्वस सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड, विनेगर, यस सर विनेगर, यस एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, CH3CH2Br अल्कोहलिक KCN, ये बन गया, KOH के साथ क्या बन जाएगा फिर, इसमें क्या बन रहा है, CH3Br KCN वाले में क्या बन रहा है बेटा, बोलिए। A. ये बनेगा, Propionic acid. वेरी गुड, 3 कार्बन एटम्स आ जाएंगे, 3 कार्बन एटम्स का एसिड बनेगा। नेक्स्ट आ जाइए, अ कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विथ HCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या बनेगा, A पूछ रहा है आपसे, A क्या है, यहाँ पे सोच के आंसर दीजिए और रिएक्शन लिखने की कोशिश करिए पहले। अ कंपाउंड A ऑन रिएक्शन विथ HCN फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव दिस, मतलब हमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आना है बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बड़े आराम से आ सकते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट है, मैं यहीं से टर्न कर ले रहा हूँ, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, Propanol. यस, Propanol. तो यहाँ पे HOH के साथ बना है एसिडिक मीडियम में, तो किससे बना है ये, मतलब C2H5 था, ध्यान से समझिए, यहाँ पे CN आया होगा क्योंकि CN का ही हाइड्रोलिसिस करके ये बनेगा, और ये OH था, इधर CH3 था, आई थिंक आई एम करेक्ट हियर, यस। नाउ ये कैसे बना, HCN के साथ रिएक्शन करके बना, हमने अल्डिहाइड कीटोन का एक रिएक्शन पढ़ा था बेटा, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन, तो ये कंपाउंड क्या है आपके पास, साइनोहाइड्रीन ही है ना, Yes sir. साइनोहाइड्रीन ही था ना जिससे ये बना, ये मतलब ये वाला साइनोहाइड्रीन है, ये तो एसिड हो गया जर्मिनल अल्कोहल होगा। C is answer. HCN के साथ, मतलब हमने क्या लिया, C2H5, इधर क्या था बेटा, COCH3. C double bond O CH3. करेक्ट, D तो answer. कंपाउंड क्या था आपके पास, Propanol. यस, नहीं Sorry, नहीं, butanol. ब्यूटेनोन, बिकॉज 4 कार्बन एटम्स है ना, इधर C2H5 है एक साइड में, करेक्ट ना, ब्यूटेनोन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आई थिंक हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए, आपको वापस चेक कर लेता हूं मैं एक बार, कुछ छूटा रहेगा तो नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस अबाउट एंटायर अमाइन चैप्टर, बहुत ध्यान से एक बार रीड करके आइएगा आप अमाइंस को, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी, अमाइंस में जितनी भी डिफिकल्टी है आप पूछेंगे, ठीक है, ओवरऑल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका अमाइंस का नेक्स्ट टर्न में। ओके स्टूडेंट्स, चलो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, Thank you sir. sir. Bye sir. Thank you Bye. sir. Thank you, sir. Bye. बाय बेटा, बाय बाय।